मैनी टू मैनी फील्ड का HTML फॉर्म बनाना अब हम सीखने वाले हैं कि HTML फॉर्म के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे। सबसे पहले Django का एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर लेते हैं हमारा, उसके बाद और आगे मूव करते हैं और एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। सो लेट्स से Django एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट एंड मैनी प्रोजेक्ट, आई एम नेमिंग इट मैनी टू मैनी रिलेशन के लिए मैनी प्रोजेक्ट। ओके, सो once this project get created, route to the project directory and create the application. So python manage.py start app, name demo app, let's say. Now code dot now we need to do the necessary things. अब वो necessary things हमारी क्या है? First thing is register your application with the project. Go to the settings and in there, in the installed apps list, you will have to put the name of your application into there. So your Django will provide the support for your application now onwards. After doing this, let's go to the application directory inside the models and create a model which has many to many relationship. So I'm creating a model movie, let's say. So class movie. Okay, this is going to be a model. So model class बनाने के लिए इसको models dot model का child होना necessary है। इसके अंदर फील्ड क्या क्या रखनी है? आई वांट टू कीप द नेम फील्ड, दैट इज गोइंग टू बी care फील्ड, और this the name of movie actually, so it could be more than 50 alphabet long, so I'm keeping it 200. Okay, and date of release, and this is going to be models dot date field. Okay, and date field में auto now and all, if you do want to do that, अगर करना चाहते हो कि खुद से ऐड हो जाए डेट वगैरह, then do that, otherwise do not do that. So मैं नहीं करने वाला। इसके बाद def str मेथड, जिससे कि थोड़ी सी विजिबली जो उसकी हम विजिबिलिटी रखेंगे थोड़ी सी ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल रहेगी, हमारे को नेम मिलेगा मूवी का। एंड मेटा क्लास, not necessary to make, but I personally always create this meta class just because I don't want to keep the name of table as Django is decided. I want to alter that name. That is why I'm doing this. So movies, let's say. Okay, so this is our first model. Now we have actors. So class actor. Okay, and let's say cast, not actor, let's say cast, and cast is models dot model child, sorry, models dot model child, and in this class name of cast is going to be there. Okay, so name, and the name is going to be what? Name is going to be one thing, so care field. Okay, so name is care field, एंड ज़्यादा चीज़ें नहीं रखूँगा, जस्ट टू कीप इट सिंपल। सो नेम ले ले रहे हैं, एज ले लेते हैं जो कि मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड, लेट्स से। ओके, एंड एक्चुअली पॉजिटिव इंटीजर फील्ड। सो अगर आपको सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ही लेना हो, सो पॉजिटिव इंटीजर फील्ड, नेगेटिव में तो किसी की एज हो नहीं सकती, दैट इज़ वाई मैंने इसे पॉजिटिव इंटीजर फील्ड बोल दिया। इसके बाद अब इसने किस किस मूवीज़ में काम करा है? सो मूवीज़, जिस जिस मूवी में इसने काम करा है, सो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ओके, मैनी टू मैनी फील्ड। अब इस मैनी टू मैनी फील्ड का रिलेशन किसके साथ होगा? इसका रिलेशन होगा हमारे लिए मूवी, एक जो मॉडल हम अर्लियर क्रिएट करके आए हैं उस मॉडल के साथ इसका रिलेशन होने वाला है। ओके, जो मॉडल हम जस्ट अभी क्रिएट करके आए हैं अबव ऑफ दिस मॉडल, उसके साथ इसका रिलेशन होगा। रिमूविंग द verbose and def str method, so name will be returned। str method के थ्रू हम name रिटर्न करने वाले हैं। and let's move ahead, and meta class, so meta is going to be change the table name only, so table name is going to be
cast. Okay, cast, and that's it. Models are ready. Save it. After saving this, go over here, python manage.py, make migrations and press enter. Wait for a while. So it is showing some error. DB models has no attribute like model. So somewhere double models would be there. वो same last error date field में जैसे पहले हुआ था. And save it. Again try to run the migrations. So two models have been created. First one the movie and the other one is the cast. Okay. So to create the table as well, python manage.py migrate. We will have to migrate the stuff. So everything is going well. Everything is running well. Yeah. So it's done. After doing this thing, जब हमारा मॉडल रेडी हो चुका है, now we need to create a view function. हम दो view function बनाएंगे. एक def add movie. This will help us to add movie. Okay. So ये एक add movie वाला function होगा हमारा view function. Okay. And और फिर हम इसके अंदर रिक्वेस्ट को भी हम चेक करेंगे कि रिक्वेस्ट कौन सी आई है, उसका मेथड क्या है. अगर मेथड पोस्ट होता है देन आई वांट टू परफॉर्म सम फर्दर ऑपरेशन, अलग ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं मुझे. अगर नहीं होता है तो मुझे कुछ और करना है. सो अगर गेट है मेथड तो मैं जस्ट सिंपली एक टेम्पलेट दिखवा देना चाहता हूँ. तो रिटर्न करा मैंने रेंडर ऑब्जेक्ट और उस रेंडर रिक्वेस्ट को मैंने रेंडर कर दिया उस ऑब्जेक्ट से. कहाँ पर? एक एड मूवी डॉट HTML नाम से टेम्पलेट बनेगी, उस पे रेंडर करा. कॉन्टेक्स्ट के नाम पे मैंने कुछ भी नहीं भेजा. ठीक है. सेम जैसे ये एड मूवी क्रिएट करा है हमने, ऐसे ही एड कास्ट भी बनाऊंगा मैं. तो ऐसे ही एक और बना लिया मैंने, एड कास्ट. ओके. सो एड मूवी एड कास्ट मैंने बोल दिया. सो ये VS कोड की मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी होती है. व्हाइल प्रेसिंग दी ऑल्ट आप मल्टीपल प्लेसेस पे क्लिक करो जिससे आप 2-3 जगहों पर एक साथ लिख सकते हो. तो ऐड कास्ट मैंने बोल दिया. ठीक है. तो मेरे को बार बार नहीं लिखना पड़ता. फिर अब रही बात पोस्ट रिक्वेस्ट की. अगर मूवी ऐड करते टाइम पोस्ट रिक्वेस्ट आती है तो क्या करा जाएगा? तो कुछ चीज़ों को लिया जाएगा. नेम होगा हमारे को जो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, यानी कि HTML एक फॉर्म बनेगा. उस फॉर्म के अंदर नेम नाम से एक एलिमेंट होगा, उसकी वैल्यू को गेट करा जाएगा. एक डेट ऑफ रिलीज होगी तो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट करा जाएगा किसको? डेट ऑफ रिलीज को. ये दोनों चीजें ली जाएंगी. इन दोनों चीजों को लेने के बाद हमने जो मॉडल क्रिएट करे थे, सो फ्रॉम करंट वर्किंग डायरेक्टरी पे एक मॉडल है जिसका मॉड्यूल है जिसका नाम है मॉडल्स. उसमें से इंपोर्ट करा मैंने किसको? एक तो कास्ट को इंपोर्ट करा, एक मूवी को इंपोर्ट करा. सॉरी नॉट मेटा, मूवी को इंपोर्ट करा. ओके. सो दोनों चीजें इंपोर्ट हो चुके हैं. अब यहाँ पर वी नीड टू क्रिएट द मूवी. मूवी क्रिएट करने के लिए मूवी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है मूवी का. सो इसके अंदर नेम इज गोइंग टू बी नेम एंड अदर थिंग. ये तो सिंपल ही है हमारे, इसलिए मैं जस्ट डायरेक्टली जल्दी जल्दी टाइप कर दे रहा हूँ इसे. डेट ऑफ रिलीज इज गोइंग टू बी डेट ऑफ रिलीज. सो ये हमारे क्रेडेंशियल्स होंगे जिनके बेसिस पे मेरे को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना. आफ्टर क्रिएटिंग दिस ऑब्जेक्ट, ये सब कुछ हो जाने के बाद रिटर्न करा जाएगा रेंडर ऑब्जेक्ट ही, और वो रेंडर ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा रिक्वेस्ट टू द सेम पेज बट विद वन मैसेज. एंड दैट मैसेज इज गोइंग टू बी something like this. So message is going to be movie added. Okay, this is going to be our message. लेकिन ये व्यू फंक्शन तो हमने बना दी, ये टेम्पलेट्स ही अभी नहीं बनी है. इन टेम्पलेट्स को बनाते हैं. एप्लीकेशन लेवल पे ही रख रहा हूँ मैं टेम्पलेट्स. तो एक नया फोल्डर बनाया विद नेम टेम्पलेट्स, और इस टेम्पलेट्स के अंदर अब मेरे को एक नई फाइल बनानी है. सो न्यू फाइल जिसका नाम रखा एड मूवी डॉट HTML. ओके. इसके अंदर HTML की एक्सटेंशन पिक कर लेते हैं जिससे इजीली कोड हो जाए. HTML5 की टेम्पलेट ले ली यहाँ पर पूरी, हमारे को बन के मिल गई. टाइटल के तौर पे आई वांट टू कीप एड मूवी. सो एड, इसकी तो जरूरत नहीं है. सो एड मूवी लेट से. ओके. सो टाइटल के तौर पे वी आर कीपिंग इट एड मूवी. एंड पोस्ट मेथड के साथ CS
नहीं लगाना डेफिनेटली है, और वो फॉर्म के अंदर लगाया जाता है। सो जब यहाँ पर हम फॉर्म बनाएंगे जिसका मेथड पोस्ट होगा, और एक्शन हमने अभी यूआरएल पैटर्न नहीं बनाया लेकिन बनाएंगे आगे चल के। सो यहाँ पर CSRF टोकन लगाना नेसेसरी है क्योंकि यहाँ से एक पोस्ट रिक्वेस्ट हो रही है। एक्शन में हम यहाँ पर ये जो हमारे व्यू फंक्शंस हमने बनाए हैं इनका यूआरएल पैटर्न बनाते हैं पहले, जो हमारे को वहाँ एक्शन में मेंशन करना पड़ेगा। सो मैंने बोला फ्रॉम डेमो ऐप, उस डेमो ऐप में से डॉट मॉडल्स में से मुझे इंपोर्ट करना है, मुझे इंपोर्ट करना है किस चीज़ को, एक है कास्ट, मॉडल्स में से नहीं, व्यूज में से। व्यूज में से मेरे को इंपोर्ट करना है किसको, एक है ऐड मूवी, एक है ऐड कास्ट। उन दोनों को मैंने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। एंड यूआरएल पैटर्न क्रिएट कर देते हैं। सो लेट्स से ऐड मूवी, ये हमारा यूआरएल पैटर्न है मूवी ऐड करने के लिए, जिसपे ऐड मूवी वाला फंक्शन फायर होगा, और इसका नेम जो है वो है ये रहा, ऐड अंडरस्कोर मूवी। ओके, एंड आफ्टर दिस पाथ एक और बनाया मैंने जो कि ऐड कास्ट है हमारा। अगर कास्ट ऐड करनी हो तो इस तरीके से करेंगे। एंड कौन सा फंक्शन फायर होगा, ऐड कास्ट वाला। एंड नेम क्या है इस यूआरएल पैटर्न का, सो आई एम नेमिंग इट ऐड कास्ट। ओके, सो ये हमारे दोनों यूआरएल पैटर्न बन के रेडी हो चुके हैं। जो कि वाइट स्पेसेस ऐड करना, ये जो बिना वजह में स्पेसेस दे रहा हूँ एक्चुअली इन्हें वाइट स्पेसेस कहते हैं। ये गुड कोडिंग प्रैक्टिस की पहचान होती है, ठीक है। जैसे थिंग्स हमारी सेपरेट दिखती हैं, तो सी जो हमारा पहले का यूआरएल पैटर्न है उसमें भी वाइट स्पेस है यहाँ पर, तो देना रिकमेंडेड होता है। ओके, सो यूआरएल पैटर्न्स हमारे रेडी हैं, और यूआरएल पैटर्न्स रेडी हैं तो अब हम इन पैटर्न्स को अपने यहाँ पर एक्शन में मैं डाल सकता हूँ कि एक यूआरएल, अब उस यूआरएल का नाम क्या है, ऐड मूवी। इस यूआरएल पे मेरे को पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है। मीनवाइल इसमें क्या क्या चीजें रहेंगी, सो इनपुट टाइप एक तो टेक्स्ट रहेगा, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट अलाउड रखने वाला हूँ। सो नेम इसका नेम ही रहेगा, और ये थिंग जो है हमारी ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। फिर इनपुट टाइप एक और लिया मैंने जो कि डेट रहेगा, ठीक है। सो इसकी डेट ऑफ रिलीज है नेम, और ये थिंग भी हमारे लिए रिक्वायर्ड है। ओके, इसके बाद एक इनपुट टाइप सबमिट आएगा, इनपुट टाइप सबमिट, और उसकी वैल्यू मैंने सेव रखी, मतलब इस पे क्लिक करने से हमारे लिए चीज़ें सेव हो जाएंगी। फिर हमारे को एक मैसेज मिलेगा। सो अगर मैसेज मिला है तो मुझे हेडिंग 2 के अंदर मैं उस मैसेज को प्रिंट कर रहा हूँ, और वो मैसेज मैं अपर केस में चाहता हूँ, तो मैं अपर लिख दिया यहाँ पर कि मेरे को अपर केस में चाहिए वो पूरा का पूरा मैसेज। ओके, सो ऐड मूवी वाला तो हमारी फंक्शनैलिटी ओवर हो चुकी है, तो ऐड मूवी तक का एग्जीक्यूट करा कर देखते हैं पहले एक बारी। सो पाइथन manage.py रन सर्वर, कि कोई इशू तो नहीं है इसमें। सो सर्वर इज गेटिंग लोडेड, सब कुछ हो गया, वी गॉट दैट यूआरएल। अब हमारे को जस्ट उस यूआरएल पे रिक्वेस्ट भेजनी है। सो लेट्स लॉन्च द क्रोम, और यहाँ पर ऐड मूवी लेट्स से, एंड जस्ट एंटर प्रेस करा, वी गॉट दिस थिंग्स। सो लेट्स से मूवी, सो मैंने यहाँ पर मूवी का नाम दे दिया केसरी। ओके, सो डेट ऑफ रिलीज सम डेट एंड सेव। सो ये तो हमारा सिंपल है, मूवी गॉट एडेड, हम जानते हैं ये तो होना ही था सिंपली। तो मेन सिनेमा इज अबाउट एडिंग दी कास्ट, कास्ट को ऐड करने के लिए कैसी टेम्पलेट बनेगी, ये है मेन सिनेमा। सो अब हमारे को काफ़ी सारी चीज़ें लेनी है पोस्ट रिक्वेस्ट के टाइम पे, अब मेरे को भी कुछ फर्दर रीडिंग करके प्रोसेस करना होगा। तो सबसे पहली बात रही इसकी टेम्पलेट बनाते हैं जिस पे हम राउट करवाने वाले हैं। सो एक नई फाइल बनाई जिसका नाम ऐड कास्ट डॉट HTML मैंने रखा, ऑलमोस्ट सेम होगी इसके जैसी, तो मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। लेकिन जब यहाँ से इस व्यूज से गेट रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, ठीक है, इस व्यूज से जब गेट रिक्वेस्ट भी भेजी जाएगी उस दौरान भी कुछ चीज इसमें यहाँ पर साथ में भेजी जाएंगी, और वो होंगी हमारी मूवीज कि कितनी सारी मूवीज हैं, वो सारी की सारी मूवीज यहाँ पर से वहाँ ऑप्शन में दी जाएंगी। सो मूवी, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, सारी की सारी मूवीज मैंने फैच करके वहां पर भेजने की तैयारी कर ली।
इसके बाद अब यहाँ पर क्या होगा, यूआरएल पैटर्न सबसे पहली बात ऐड मूवी पे नहीं, ऐड कास्ट पे रिक्वेस्ट भेजी जाएगी। दिस टाइम मेथड पोस्ट ही होगा, नेम लिया जाएगा कास्ट का, डेट ऑफ रिलीज नहीं ली जाएगी। यहाँ पर एक इनपुट टाइप नंबर होने वाला है जो कि एज को रिप्रेजेंट करेगा। सो हमने यहाँ पर इनपुट एक नंबर ले लिया। ओके, सो इसने सजेशन क्यों नहीं दिया, क्योंकि जैंगो की टेम्पलेट लोडेड है यहाँ पर। सो HTML ले लेते हैं, इनपुट नंबर, हमारे को एक नंबर चाहिए और इसका नाम होगा एज। आईडी में कुछ नहीं रख रहा, बट दिस थिंग इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड, सो रिक्वायर्ड मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। इसके बाद कौन सी मूवीज में एक्चुअली दिस एक्टर ऑलरेडी वर्कड, सो ये सिलेक्ट होगा एक, ठीक है। सिलेक्ट में नेम इसका मूवी है कि कौन कौन सी मूवी में इसने काम करा है, सो लेट्स नेम इट मूवीज या मूवी ही रखते हैं। आईडी ये रिक्वायर्ड है पहली बात तो। दूसरी बात, इसका नेम दे दिया है, आईडी दे दी है, रिक्वायर्ड भी है। इसके अंदर एक चीज और लिखनी है आपको, वो है मल्टीपल। इससे क्या होगा, इस सिलेक्ट के अंदर के मल्टीपल एलिमेंट्स को आप एट अ टाइम सिलेक्ट कर पाओगे। ओके, सो मल्टीपल। और एक चीज और दे सकते हो इसमें, साइज की, एक बार में कितनी वैल्यूज, ये कितनी रोज डिस्प्ले रखे, तो आई एम सेइंग कि एक बार में 3 रोज डिस्प्ले रखेगा। सो मल्टीपल की हेल्प से अब इसमें से मल्टीपल वैल्यूज को पिक करा जा सकता है। यहाँ पर एक फॉर लूप लगाया मैंने और मैंने बोला फॉर मूवी इन मूवीज, मूवीज के ऊपर लूप करा, मूवीज के अंदर से एक एक मूवी को निकाला और ऑप्शन मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। इस ऑप्शन की वैल्यू क्या होगी, सो आई सेड मूवी डॉट आईडी, जो भी मूवी की आईडी है, और इसके अंदर लिखा हुआ क्या आएगा, मूवी का नाम, यानी कि मूवी डॉट उसका नेम, जो भी मूवी का नेम है वो लिखा हुआ आएगा, और हाइफन उसकी डेट ऑफ रिलीज भी होगी। सो मूवी, तो यहाँ पर मैंने लिखा मूवी डॉट, सॉरी, मूवी डॉट उसकी डेट ऑफ रिलीज। ओके, सो ये सारे के सारे हमारे बन जाएंगे। इसके बाद अब हमारे को क्या करना है, इसके बाद अब हमारे को इन चीज़ों को सबमिट करवाना है। अब सबमिट करवाते टाइम डेफिनेटली ऑपरेशन डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे को एक से ज़्यादा वैल्यूज मिलने वाली है, और हम जानते हैं कि मैनी टू मैनी फील्ड के अंदर किस तरीके से एलिमेंट्स को ऐड करा जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद अब पोस्ट रिक्वेस्ट में सबसे पहले उन वैल्यूज को गेट करता हूँ मैं। सो मैंने सबसे पहले उन वैल्यूज को गेट करा। सो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, पहली चीज तो हमारे को नेम चाहिए, तो वी गॉट दैट नेम, हमारे को नेम मिल गया, जो कि मैंने एक नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया कि ये हमारी कास्ट नेम है। उसके बाद वी नीड एज, सो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट एज, और मैंने एज को भी यहाँ पर गेट करवा लिया, वी गॉट दैट एज। नाउ मूवीज, जिन जिन मूवीज में ही ऑलरेडी वर्कड या शी ऑलरेडी वर्कड, सो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट नेम क्या था उसका, गेट में मैंने, और यहाँ पर गलती से एज लिख दिया है ऊपर, सो गेट में यहाँ पर मैंने नेम दे दिया मूवी, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐड कास्ट में इस सिलेक्ट फील्ड का नाम क्या देकर आया हूँ, मूवी। ओके, सो अब हमारे को काफ़ी सारी वैल्यूज एंड ऑल मिलने वाली है डेफिनेटली, और वो हमारे को यहाँ पर व्यू फंक्शन पे मिलेगी। तो मैं जस्ट एक बारी सबसे पहले लर्न कर रहा हूँ कुछ, तो मूवीज को मैंने प्रिंट करके देखा कि मेरे को इसमें वैल्यूज मिल किस तरीके के लिए, ठीक है। चलो इसे रन तो हमारा ऑलरेडी हो ही रखा है, यहाँ पर आए ऐड मूवी, एक आध मूवी और ऐड कर देते हैं। सो लेट्स से ऑल द बेस्ट, ओके, और डेट ऑफ release, let's say this, and save. Another movie got added. After adding the movie, we need to go to the cast, add cast. So see, multiple values are there, and now we can select more than one value. पहले नहीं होता क्योंकि multiple मैंने लिखा है, लेकिन now we can select more than one value. अब हम एक से ज़्यादा one value को select कर सकते हैं. So let's say एंड कौन कौन सी मूवीज, सो लेट्स से मैंने ये दोनों दे दी एंड सेव पे क्लिक कर दिया। अभी एरर आएगा, वी नो दैट, क्योंकि मैंने व्यू में से कुछ रिटर्न नहीं करा, लेकिन जो चीज़ मैं देखना चाहता हूँ वो मेरे को क्या मिल रही है, मेरे को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ मिल रही है, दैट इज 2।
जो कि मेरे को यहाँ पर दोनों आईडीज मिलनी चाहिए थी। फाइनली मेरे को यहाँ पर क्या मिल रही है, एक ही आईडी। तो दिस सिलेक्ट थिंग, ये जो हमारा सिलेक्ट था, ये हमारे लिए वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली। ठीक है, तो अब हमारे को कुछ और करना पड़ेगा, कोई और टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा जिससे ये हमारे लिए प्रॉपरली वर्क करे। एक्चुअली मेरे को 1 और 2 दोनों मिलना चाहिए था, क्योंकि मैंने यहाँ पर दोनों ही आईडीज को सिलेक्ट करा था। सी, मैंने यहाँ पर ये दोनों चीजें लिखी और मैंने फिर यहाँ पर ये दोनों चीजें ही सिलेक्ट करी एंड सेव करा, तो मेरे को आई शुड बी गेटिंग 1 and 2 बोथ द थिंग्स। मेरे को दोनों की दोनों वैल्यू मिलती तो मैं फर्दर ऑपरेशन कर पाता, लेकिन मेरे को सिर्फ एक ही वैल्यू मिल रही है 2। सो दैट इज द इशू। तो वी नीड टू इम्प्रूव आवर टेम्पलेट। हमारे को हमारी टेम्पलेट में थोड़ी सी इम्प्रोवाइजेशन करनी पड़ेगी। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं चेक बॉक्सेस के साथ एक काफी सारी फील्ड्स देने वाला हूँ। चेक बॉक्सेस के साथ काफी सारी फील्ड चेक बॉक्सेस के साथ मैं देने वाला हूँ। सो फॉर लूप तो मैंने लगाया है यहाँ पर। फॉर मूवी, इन मूवीज, मूवीज के अंदर से काफी सारी मूवीज को मैंने निकाला। इसके बाद अब हर मूवी के लिए एक्चुअल में क्या करा जाएगा, हर एक मूवी के लिए एक वो मैं बनाऊंगा चेक बॉक्स। सो यहाँ पर मैंने क्रिएट करा हर एक मूवी के लिए एक चेक बॉक्स। सो इनपुट टाइप चेक, ये रहा हमारा चेक बॉक्स। इसका नेम क्या है, यानी कि इसके ऊपर इस चेक बॉक्स के ग्रुप का नेम क्या है। सो मैंने बोला इसके ग्रुप का नेम होगा मूवीज, लेट्स से। इस अकेले के ऊपर क्लिक करने का मतलब क्या है, सो इसका मतलब वैल्यू क्या है इसकी। सो वैल्यू जो होगी इसकी, सो मैंने बोल दिया वैल्यू होगी इसकी जो हमारे को मूवी में से मिली है आईडी। तो सो मूवी डॉट आईडी वो मैंने यहाँ पर दे दी एंड सेव करा। ठीक है, सेव भी कर दिया इसे एंड मूवीज भी हमारे को यहाँ पर मिली हुई है। अब बेसिकली मैं इसके थ्रू देखूंगा, अगर ये वर्क नहीं करेगा तो कोई और अल्टरनेटिव देखेंगे। सो अब बेसिकली काफी सारे चेक बॉक्सेस आएंगे जिसका नेम मूवीज ही होगा, और यहाँ पर हमने अपने ऐड कास्ट के बाद व्यूज फंक्शन में मूवीज नेम मूवीज आएगा, सॉरी। ठीक है, सो इसको सेव करा अगेन। सेव करने के बाद लेट्स गेट ओवर हियर अगेन एंड सी, रिफ्रेश करते हैं इस पेज को। तो अब हमारे को 2 चेक बॉक्सेस दिख रहे हैं, लेकिन उनके आगे मूवी का नाम भी देना चाहिए था हमारे को। सो वो दे दिया मैंने मूवी डॉट नेम उसका, कि कौन सा चेक बॉक्स किस मूवी के लिए है। सर्वर रिलोड हो रहा होगा, अभी नहीं हुआ। सो सर्वर को तो रिलोड होने की जरूरत भी नहीं है वैसे इस बार। सो वी गॉट रिस्पॉन्स और नॉट। कास्ट पे विजिट करते हैं। सी, हमारे को दोनों मूवीज के नाम दिख रहे हैं। सो मैंने फिर से ऐसे ही कुछ भी इसमें डिटेल्स डाली, और अभी जस्ट मैं टेस्ट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही कर रहा हूँ। सो मैंने दोनों पे क्लिक भी कर दिया एंड सेव भी करा। सो वैल्यू एरर तो आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस सेम, लेकिन व्हाट वैल्यू वी आर गेटिंग दिस टाइम, अगेन सेम 2। सो अगेन दैट इशू, मेरे को फिर से वही इशू मिल रहा है। सो अब फाइनल स्टेप है हमारा जिससे इशू सॉल्व हो जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम मैंने रख दिया जो भी हमारी मूवी का नाम है। सो मूवी का नेम क्या है हमारा, मूवी डॉट नेम। ये रहा हमारा, ये इस चेकबॉक्स का नेम होगा और ये इस चेकबॉक्स की वैल्यू होगी जो कि हमने यहाँ पर ले ली है। ओके, सो मूवी नेम भी है, अब हमारे पास चेकबॉक्स की वैल्यू भी है। व्यूज पे गए। अब व्यूज पे जाने के बाद हम एक ही चीज को गेट नहीं कर सकते, अब हमारे को सारी मूवीज पहले से ही निकाल के भी रखनी पड़ेगी। सो सारी मूवीज के नेम्स निकाल के रख रहा हूँ। सो मैं बेसिकली मूवी नेम्स बोल रहा हूँ इसे, मूवी नेम्स। ये सारे के सारे हमारे मूवी के नेम्स होंगे, जिसमें मैंने क्या करा, एक्स फॉर एक्स इन मूवी, जितनी भी मूवी है हमारी, डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ये सारे के सारे लिए, और x डॉट नेम मैंने यहाँ पर निकाला सिर्फ और सिर्फ कि मेरे को सिर्फ नेम चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या करा, अब मेरे को नेम मिल चुके हैं, अब मेरे को मूवी की आईडीज गेट करनी है। सो मूवी की आईडी गेट करने के लिए मैंने यहाँ पर मूवी आईडीज बोल दिया। ये एक ब्लैंक लिस्ट है फॉर नाउ। ठीक है, ये हमारी क्या है, एक ब्लैंक लिस्ट। फिर मैंने क्या करा, फॉर एक्स इन मूवी नेम्स, मैं हर एक मूवी के नेम्स पे गया। ओके, और लूप करा मैंने उस पर। फिर मेरे को हर एक मूवी की आईडी चाहिए, जिसको यूजर ने चेक करा था वो सारी आईडीज चाहिए बेसिकली मेरे को। ठीक है, सो हमारे को देखते हैं उसकी क्या क्या आईडीज मिलती हैं। तो सी, मैंने यहाँ पर अब क्या करा, ये मिलने के बाद मैंने बोला कि मूवी आईडी जो ये हमारी एक लिस्ट है, इसमें अपेंडेशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा,
यानी कि चीज़ों को ऐड करा जाएगा। और ऐड करने के बाद कहाँ से वैल्यू को लाया जाएगा, वो है request.post.get, वहां से वैल्यू को लेकर आया जाएगा। और वो वैल्यू क्या, किस चीज की वैल्यू लेकर आनी है हमारे को, इस एक्स नेम की वैल्यू लेकर आनी है, जो कि हमने सारी मूवीज के नेम्स यहाँ पर रखे थे। इसके बाद मैं जस्ट एक बारी मूवी आईडीज को प्रिंट कर रहा हूँ, ओके, एंड सेव करके देखते हैं हमारा रिलोड हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो रिलोड मैंने करा दिया कंट्रोल सी दबाकर, सर्वर रिलोड हो चुका है। वापस से चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सो सी, अब भी एरर तो आएगा हमारा, क्योंकि मैंने अभी व्यू में से कुछ रिटर्न नहीं करा है, लेकिन मेरे को एक्चुअली ये दोनों आईडीज चाहिए थी, इसीलिए मैं ये प्रोसेस फॉलो कर रहा था। सो दिस टाइम वी आर गेटिंग व्हाट, बोथ दी आईडीज। हमारे को दोनों आईडी मिली, बट इन दी फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, वो हम सुधार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मैंने सी इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करा है एंड फिर सेव करा है, तो डेफिनेटली हमारे लिए एग्जीक्यूशन तो हो रही है। सर्वर थोड़ा सा लेट रन कर रहा है मेरा, सो हमारे को 1 एंड नन मिल रहा है, 1 एंड नन मिल रहा है। ओके, सो यहाँ पर अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहला टास्क ये जो मैंने यहाँ पर परफॉर्म करी है ऑपरेशन, ठीक है। सो मेरे को ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और साथ में सबसे पहली चीज जो हमारा इश्यू आ रहा है, ये हमने जो अपेंड करा है इसमें, ये मेरे को इंटीजर वर्जन ऑफ दैट इंपोर्ट कराना है इसके अंदर। तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि इंटीजर वर्जन ऑफ दैट आएगा इसमें। और इसके लिए भी मेरे पास एक सिचुएशन है कि ये अपेंड ऑपरेशन सिर्फ तभी होगा अगर हमारा ये जो भी हमारी रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट आईडी से हमारे को मिल रहा है, पोस्ट डॉट गेट से जो हमारे को मिल रहा है, वो हमारा ऐसा होता है तो, ठीक है। सो पोस्ट डॉट गेट से मैंने यहाँ पर से एक्स के वैल्यू पे ही बोल दिया। सो सी अब होगा क्या, मैंने यहाँ पर लिख रखा है, मेरे पास एक सिचुएशन है कि मेरे को मेरी लिस्ट के अंदर जिसका नाम है मूवी आईडी, उसमें ऐड करना है किसको, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट को। लेकिन तब जब रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट नॉट नन हो, यानी कि ये ऑटोमेटिकली बूलियन में टाइपकास्ट होगा और ये नॉट नन होगा, तो ऐसा होगा। एल्स मैंने यहाँ पर पास कर दिया कि कुछ भी नहीं करना मुझे, अदरवाइज कुछ भी नहीं करना। तो सेव करते हैं, वापस से सर्वर हमारा रिलोड हो रहा है, या कंट्रोल सी दबाकर हमने करवा दिया रिलोड। अगर सिंटैक्टिकली सी तो हम टर्नरी ऑपरेटर में पास नहीं लगा सकते, तो मैं पास की जगह कुछ और स्टेटमेंट लिख देता हूँ यहाँ पर। सो लेट्स से मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यू को प्रिंट करवा दिया स्क्रीन पे, मतलब कोई एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, टर्नरी ऑपरेटर में हम पास एंड ऑल नहीं लगा सकते, तो उस वजह से हमारे को एरर मिल गया। सो एंड ऑफ स्ट्रिंग व्हाइल स्कैनिंग लिटरल एंड ऑल आया था, इसे सेव करा। सेव करने के बाद रिलोड हो रहा है अब हमारा स्टफ सारा। तो सही सर्वर हमारा फाइनली रन कर रहा है। यहाँ पर आया, वापस से ऐड कास्ट पे गया, और यहाँ पर आकर अब फिर से मैंने कुछ भी वैल्यूज लिखकर एक सिलेक्ट करा पहले। सो सेव करा। सो हमारे को एक वैल्यू मिलेगी अब लिस्ट के अंदर। अगर दो सिलेक्ट करता तो मेरे को दो मिलती। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर दोनों सिलेक्ट करे, तो सी व्हाट वी आर गेटिंग, 2 वैल्यूज ओवर हियर, मतलब उन दोनों कीज को हमारे को मिल रहा है। तो अब हमारे को चीज तो मिल चुकी है जिसे हमारे को ऐड कराना है, तो चलो अब उसे ऐड कराते हैं। ऐड कराने के लिए अब हमारे को क्या करना है, जस्ट सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है हमारे को। सो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमने कास्ट नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, जिसे इक्वल्स टू कर दिया कास्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट इसके, और यहाँ पर नेम इक्वल्स टू नेम दे दिया, ठीक है। एंड एज इक्वल्स टू एज दे दी कि हमारी नेम ये है, एज ये है, और बाकी चीजें हम ऐड करेंगे अब एक एक करके। अब क्या क्या चीजें हमारे को कैसे ऐड करनी है, सो इसके बारे में बात करते हैं। फॉर एक्स इन मूवी आईडीज, जो जो बंदे ने सिलेक्ट करी है उन सारी मूवीज आईडीज पे मैंने लूप लगाया कि एक एक करके उसको एक्सेस करेगा ये सारी मूवी आईडीज को, ओके। और सारी मूवी आईडीज को एक्सेस करने के बाद ये क्या करेगा हमारे लिए, कास्ट डॉट एड, सॉरी मूवी जो हमने मॉडल में बनाया था, इसके क्या नाम था हमारा, वो मूवीज था एक्चुअली। तो व्यूज पे जाकर कास्ट डॉट एड डॉट कास्ट डॉट मूवीज डॉट एड, कि मेरे को मूवी ऐड करनी है। कौन सी मूवी ऐड करनी है, हमारे को मूवी में से उस एक एक ऑब्जेक्ट को गेट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, कौन सा ऑब्जेक्ट गेट करना है, जिसकी आईडी इक्वल्स टू हो एक्स के। तो एक एक करके वो सारी मूवीज ऐड हो जाएंगी, और फाइनली वी नीड टू रिटर्न द रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ मैसेज। सो जैसे यहाँ पर हमारे को सब कुछ हमने वेल कर लिया था, इसी तरीके से अब हमने ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद रिटर्न कर दिया वापस से कहाँ पर, एड कास्ट डॉट एच टी एम एल पे विथ सम मैसेज, एक मैसेज के साथ,
मूवी एडिट की जगह कास्ट एडिट हमारे को लिखा हुआ मिलेगा, और कास्ट एडिट पे हमने यहाँ पर मैसेज वगैरह सब प्रिंट कर रखा है। व्यू सेव करते हैं, अब रन करके देखते हैं। सॉरी बैक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सो अब देखते हैं, लेट्स से अक्षय कुमार and age is let's say 50 and Kesari and all the best and save. So wait, processing is going on, taking too much time। वैसे यूजुअली इतना लगता नहीं है, सर्वर हैंग हो रहा है मेरा में भी, लेकिन स्पेस दबाने के बाद वो कर जाता है पूरा प्रोसेस, या रिलोड हो रहा है एंड ऑल। सो एक बार ये एड कास्ट पे दोबारा से रिक्वेस्ट भेजता हूँ मैं, एंड दी डिटेल कि ये रही डिटेल एंड दीज आर द थिंग्स एंड सेव, सी कास्ट एडिट। सो हमारे लिए प्रॉपर वर्क कर रहा है। सो इस तरीके से फॉर्म के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो आप मैनी टू मैनी फील्ड का फॉर्म।